Good morning to all of you. I hope you all are fit and fine and doing your science work regularly. Yesterday we discussed about elements, some elements like matters and non-matters, and how they occur in nature, how to purify minerals from their ores, and physical properties of metals and non-metals. Today we will continue our topic, that is physical properties of metals and non-metals. Yesterday we discussed only two properties, that is physical state. Physical means that metal exists in solid state. Only one metal, mercury, that exists in a liquid. Otherwise, rest of the metals exist in a solid state. Then we discussed about melting and boiling point. As you know that melting and boiling point of metals are very high, and there is a little bit exceptions. For example, cesium metal show very low melting point. Today we will start its third part, that is density. Metals are generally have high density. As you know that, I think you all have learned that some objects can float in water and others sink in water. And you know that metals which are, or you can say any object or material that is heavier than water get sink in water, but if any object is lighter than water then it will फ्लोट ऑन वाटर. ये आप कर चुके हो ना बेटा. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो वाटर से लाइटर है, वाटर से लाइट होगा, वाटर से हल्का होगा तो फ्लोट करेगा वाटर पे. अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट मटेरियल्स वाटर से हैवी होते हैं वो वाटर पे क्या करते हैं, वाटर में सिंक करते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट हैवी होगा, दैट मीन्स वो वाटर में सिंक करेगा. बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट लाइटर होगा एंड वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. इट इज़ क्लियर टू यू. डेंसिटी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. You can say density means heavy. If object is heavy, so its density will be high and that object will sink in water. And if density is low, density low means weight is low, that means mass upon volume will be less. And if density is less, then object will float on water. Generally metals shows high density but non-metals have low density. However, there are some exceptions. As you know that sodium and potassium, these are two metals that are lighter than water. That means they sink, they doesn't sink, they float on water. Why? Because density of sodium and potassium is low. मतलब सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो वाटर से हल्के हैं. हल्के होने का मतलब उनकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी लो होगी तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी कम है वाटर पे क्या करते हैं बेटा, फ्लोट करेंगे. क्लियर हुआ. सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, वाटर के ऊपर रहते हैं, वाटर के अंदर सिंक नहीं करते. नेक्स्ट आता है फिर आपके पास हार्डनेस. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर्स विदाउट गेटिंग डिस्टोर्टेड. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स सॉफ्ट एंड ईजिली गेट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड. जनरली मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं बेटा, एंड मेटल्स इजीली ब्रेक नहीं होते when we apply pressure on it. But non-metals are not hard, they are soft, they are brittle. Brittle means they can easily break into pieces when hammered. जब आप उसको प्रेशराइज करोगे then non-metals can easily break down, but metals जो हैं वो easily break down नहीं होते. Again there are some exceptions. Exception means we are saying that metals are generally hard, but sodium and potassium, these are two metals that are not hard, they are soft and can be cut with a knife. सोडियम एंड पोटेशियम बेटा बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं एंड इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. बट डायमंड, एज यू नो दैट डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, बट इट इज़ अ hardest substance. As you know, diamond is used to cut glasses, or you can say window of
एयरप्लेन, जो बेटा एयरप्लेन की विंडो होती है उसको कट करने के लिए भी, विंडो मतलब उनकी जो ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, ग्लास को कट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायमंड का। डायमंड इज़ वेरी हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है? डायमंड। बट वी आर सेइंग दैट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट दिस ओनली वन नॉन मेटल, डायमंड, विच इज़ not soft, which is very hard. This is also exception. Exception means जो अपनी property से कुछ अलग show करते हैं. As we say that sodium and potassium are metals, but we know that metals are hard, but there is exception that sodium and potassium, these are not hard, they are very soft and we can cut with a knife. And diamond, this is a form of carbon and diamond is a hardest substance. We can't cut diamond with a नाइफ। डायमंड तो एक नॉन मेटल है, हम कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट ये एक्सेप्शनल केस होगा बेटा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको गिवन है, टेक सम क्रिस्टल ऑफ आयोडीन एंड बीट दैम विद द डस्टर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द क्रिस्टल इजीली ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। एज यू कैन सी इन पिक्चर दैट देयर आर आयोडीन क्रिस्टल्स, एंड जब इसको हम आयोडीन क्रिस्टल्स को बीट कर रहे हैं, दैट मीन्स डस्टर से इसको बीट करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जो आयोडीन के पीस हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। नेक्स्ट इज लस्टर। लस्टर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर? लस्टर मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस। जनरली metals have shining appearance, so metals are luster in nature and non metals have dull appearance, मतलब शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती इनकी। सो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस, नॉन लस्ट्रस मीन्स विच हैविंग नो शाइनिंग अपीयरेंस। आयोडीन इज ओनली नॉन मेटल विच हैज़ नेचुरल लस्टर। लास्ट एक्टिविटी में आपने किया ना बेटा कि आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, और हमने बताया कि नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं एंड ईजिली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एक्टिविटी, फर्स्ट आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, even we can cut it into pieces with the help of a duster. So we discussed 5 properties. First property I tell about you, that is physical state. That means some metals, known metals exist in solid state, some in liquid, and some known metals exist in a gaseous state. Then we discussed about melting and boiling point, then about density, hardness and luster. Next is malleability. Before, do you know is given to you that some metals lose their shine. As we discussed that metals show shining appearance, but when metal come in contact with air, as you know that in air a lot of gases are present like oxygen, hydrogen, nitrogen, and metals react with oxygen and they form oxide and they lose their शाइनिंग अपीयरेंस। मेटल्स जो हैं बेटा कुछ टाइम के बाद अपनी शाइनिंग अपीयरेंस को लॉस कर देते हैं। रीज़न, क्योंकि मेटल्स जब एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और वो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड, आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बना लेगा, फेरस ऑक्साइड यू कैन से, Fe2O3। इसी तरह से कार्बन के साथ और सल्फर के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बोनेट एंड सल्फाइड। एज यू नो दैट आयरन is very shining metal, but when it come in contact with air, after a few days or you can say few months or few years, shining appearance of iron get a little bit less। आयरन जो है वो शाइनिंग अपीयरेंस को शो करता है बेटा, बट जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर में ऑक्सीजन है, धीरे धीरे उसकी शाइनिंग अपीयरेंस कम हो जाएगी एंड आयरन के ऊपर ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है, दैट इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। Next is malleability. This definition is very important. What is malleability? Malleability means to convert metals into thin sheets. Malleability का मीनिंग क्या होता है बेटा? metals को thin sheet में convert करना without breaking। metals जो हैं जब आप उसको हैमर से ब्रेक करोगे तो मेटल ब्रेक नहीं होता पीसेस में, मेटल क्या होता है? मेटल जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स शीट में कन्वर्ट होना, बट नॉन मेटल्स शीट में कन्वर्ट नहीं होते।
They cannot be hammered into sheets. They are brittle and break into pieces on being hammered. जब आप नॉन मेटल्स को हैमर करते हो बेटा, तो नॉन मेटल्स क्या हो जाते हैं, शीट्स में ब्रेक नहीं होते, शीट्स में कन्वर्ट ना होकर के नॉन मेटल्स ब्रेक हो जाते हैं पीसीस के अंदर। और तो ये किसको शो करेंगे बेटा, नॉन मैलिएबल प्रॉपर्टी को। आपको एक्टिविटी गिवन है, इन सेकंड एक्टिविटी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक मेटल एंड स्ट्राइक इट जेंटली विद हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द जिंक पीसेस स्प्रेड अ लिटल एंड बिकम थिनर बट डजंट ब्रेक। एज यू कैन सी इन दिस एक्टिविटी बेटा, लुक एट दिस। इस एक्टिविटी में क्या है, आप कर रहे हो किसको, जिंक को। जिंक को जब आपने हैमर किया तो जिंक ब्रेक ना होकर के, एज यू कैन सी, आप वन साइड से बिल्कुल इसकी जो लेयर है वो पतली हो गई है, दूसरी साइड से थोड़ी सी थिक है ना। तो थिन लेयर क्या शो कर रही है आपको, दिस थिन लेयर इज शोइंग दैट मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स ब्रेक नहीं होते जब हैमर करते हैं, मेटल्स थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स मेटल का वायर्स में कन्वर्ट होना। एज यू नो दैट मेटल्स आर यूज टू मेक अ वायर, वायर्स बनाने के लिए मेटल्स का यूज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, these are some example of ductility and these are used for electrical fitting, making net doors and wire meshes and so on। आपके घर में जो बेटा नेट वाला डोर होता है उसमें जो वायर्स लगाई जाती है वो किसकी होती है, आयरन की। ऐसे ही कॉपर वायर्स का आप यूज़ करते हो कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शन किए जाते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में वायर्स जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉपर वायर, बिकॉज कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की थिन शीट में कन्वर्ट होना उसको हम बोल रहे थे मैलिएबिलिटी, और मेटल्स का वायर्स में कन्वर्ट होना दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दैट इज दे कैन नॉट बी ड्रोन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डू यू नो में देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलिएबल एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉइल। गोल्ड एंड सिल्वर की फॉइल बनाई जाती है। फॉइल पेपर आप यूज़ करते हो बेटा सिल्वर का, स्वीट जो मिठाइयाँ होती है उसको डेकोरेट करने में। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे अच्छा जो मेटल जिसकी वायर बनाई जा सकती है दैट इज गोल्ड। अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रोन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं, बट वी आर जनरली नॉट यूजिंग गोल्ड एट होम बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। जनरली जो हमारे होम में वायर्स यूज़ की जाती है दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। वी आर नॉट यूजिंग गोल्ड, वाई, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो वी आर यूजिंग कॉपर वायर। आप अपने घर पे किसका यूज़ करते हो बेटा, कॉपर वायर्स का। वाई, बिकॉज कॉपर इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना तो कॉस्टली है और इसकी वायर्स भी अच्छी बनती है। नेक्स्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी bear a lot of strain without breaking. Metals have high tensile strengths due to their ductility and malleability. Non-metals do not have high tensile strength except carbon. Tensile strength means without any breaking, if a material can bear a lot of strain, बिना ब्रेक हुए किसी भी वेट को उठा पाना, दैट इज़ नोन एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। और मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटा बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। क्लियर हुआ। एक्सेप्शनल गिवन है आपको, कार्बन जो है, कार्बन फाइबर, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, स्टिल इट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे आर वीक, दे हैव वीक टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल मीन्स कितना आप वेट को बियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी मेटल के साथ में किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करा तो मेटल इजीली ब्रेक नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट के वेट को बियर कर लेगा, सहन कर लेगा, उठा लेगा उसको। जबकि नॉन मेटल्स के ऊपर अगर हम किसी मटेरियल को लगाते हैं तो नॉन मेटल्स जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसकी टेंसाइल, वो वीक होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। The ability of a material to transfer heat energy or electrical current from one point to another is taken as indicator of its conductivity. As you know that
meaning of conductivity. What is conductivity? Conductivity means ability of a material to transfer heat or electrical current from one point to another. That means current का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होना, that is known as a conductivity. As you know that metals are generally good conductor of electricity as well as thermal conductor. Thermal means temperature. Metals are generally good conductor of electricity. Next is thermal conductivity. Thermal conductivity of a material is a measure of ease with which heat can be flow through it. Thermal conductivity means you can understand this topic by this activity third. As you can see, this iron rod, take some hot water in a beaker and place one end of iron rod in it. Touch the other end of the rod. After some time, what do you observe? It also becomes hot. क्या किया बेटा आपने इस एक्टिविटी के अंदर? आपने एक हॉट वाटर लिया एंड हॉट वाटर में आपने आयरन रोड को डिप किया. देन यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम दिस रोड विल बिकम हॉट एट अदर साइड. दिस इज ड्यू टू property of thermal conductivity. This shows that metals are good conductor of heat and electricity. आपने किचन में भी देखा होगा बेटा अपनी मम्मा को, जब आप कुछ किसी चीज़ को गर्म करते हो पैन में और आपने स्पून रखा हुआ है तो स्पून का दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है. वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल्स जो हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो करेंगे. दैट मीन्स मेटल ऑल्सो गेट बिकम हॉट. ठीक है, इट विल गेन टेम्परेचर. बट नॉन मेटल्स दे डजेंट गेन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वुड. वुड जो है वो गर्म नहीं होती, आप उसको रखोगे. दैट्स वाई जनरली जितने भी सर्विस स्पून होते हैं, सर्विस स्पून के हैंडल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड. सर्विस स्पून के हैंडल किसके बने होते हैं बेटा? प्लास्टिक के या फिर वुड के. क्यों बने होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक और वुड जो है वो दिस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इसीलिए जब उसका एंड पॉइंट वुड का या फिर आयरन का बना होगा तो वो जनरली गर्म नहीं होंगे. मतलब नॉन मेटल्स हैं एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल कंडक्टिविटी को शो नहीं करते ये. It is due to this property that metals like copper and iron are used for making cooking utensils and water boilers. आपके जो बर्तन हैं किचन में आप जो यूज़ करते हो बेटा, that are made up of copper and iron. Why? Because copper and iron are good conductor of electricity. This is electrical conductivity. First we discussed about thermal conductivity. What is the meaning of thermal conductivity? Thermal means to gain temperature and electrical means to conduct electricity. As you can see, activity 4, we are taking a battery, 2 wires and a bulb. When we connect bulb with the battery and wire, this bulb get glows. Why? Because wire which we are using that is good conductor of electricity. And जो bulb में filament use किया गया that is also metallic and metals are good conductor of electricity. बेटा इसमें है क्या गिवन है आपको? जो हम बैटरी के अंदर बैटरी के साथ हम जो वायर्स यूज़ कर रहे हैं, वायर्स क्या हैं? दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. इंसुलेटर मीन्स दैट do not conduct electricity. There is also some exception. Graphite is a form of carbon and it is a good conductor of electricity. जनरली हम बताते हैं बेटा नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं. सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है. दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जनरली आप जो अपनी बैटरीज में रोड यूज़ करते हो दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन रोड होती हैं. ग्रेफाइट यूज़ की जाती है इसलिए बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम. अमंग मेटल मर्करी इज पुअरेस्ट कंडक्टर. सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का वो है सिल्वर मेटल. बट आप यूज़ किसके करते हो घर पे वायर्स बनाने के लिए? कॉपर का. किस लिए? क्योंकि कॉपर जो है वो चीप भी है, इजीली अवेलेबल मिल जाता है आपको. नेक्स्ट इज मेटल. मर्करी मेटल है बट दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लास्ट, दैट इज सोनोसिटी। सोनोसिटी मीन्स some metals produce sound when you struck. फॉर एग्जाम्पल आयरन को स्ट्रक करते हो, स्टील को जब आप स्ट्रक करते हो तो आपको साउंड सुनाई देती है ना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ सोनोसिटी। सोनोसिटी मीन्स metals produce a sound. So metals are sonorous. It is due to this property metals are used for making bell and known metals are non-sonorous. Sonorous means साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बट नॉन मेटल्स जो वो साउंड पर बेल बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ क्यों करते हैं हम? बिकॉज मेटल शोज सोनोरस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स when we struck the iron bell then it produce sound. जब आप आयरन बेल को स्ट्रक करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए जनरली स्कूल्स में जो बेल लगी होती हैं वो किसकी होती है? मेटल्स की। वुड की नहीं यूज़ करते हैं हम बेल, किस लिए? क्योंकि वुड जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब ज़्यादा नहीं करता। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपको एक टेबल में कंपाइल करके गिवन है जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल, दैट इज मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड गैसेज। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स आर जनरली हाई एक्सेप्ट सीजियम एंड नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जो आपने कर लिया सारा वही आपने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको ये टेबल लर्न करनी है बेटा। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। लस्टर मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस, मेटल शोज शाइनिंग अपीयरेंस एंड नॉन मेटल्स they do not show shining appearance. Malleable means to make a sheet and ductile means to make a wire. Tensile strength means to bear weight of any object. Next is thermal and electrical conductivity. Conductivity means that they are good conductor of heat and electricity. Last we discussed that sonorous, that means metals produce sound and non-metals generally do not produce sound. And there are some elements that show properties of metals as well as non-metals. Sometimes they show property of metals, and those elements that shows both the properties of metals and non-metals are known as metalloids. And example of metalloids are silicon, germanium and arsenic. These are metalloids. So metalloids is clear to you. Metalloids are those elements which show both the properties of metals as well as non-metals. For example, silicon, germanium and arsenic. These are example of metalloids. So today your work is beta, you have to learn physical properties of metals and non-metals and read page number 39, 40, 41 and 42. This is your today work. Okay beta, have a nice day.